Fine. So we have seen this example. The example is nothing. One, the example of one matrix that represents a capacity of bonds or other matrix that represents whether it is heavy rain station or not. Fine. So there are two matrices. If they are related with each other, how we find a cross multiplication over there? By just applying a mean, we can find the relation between them. Fine. This how we find a relation. अगर तुमको ये दो सेट दिया है, so this how you want to find a relation. And after that, uh, they will ask you to calculate first order, second order, third projection, first projection, second projection, and total projection. If the if the answer is nearest to the near to one, then we can say it is batch given. Now, second thing, if some other matrix is given to you, ठीक है, ए और ए क्रॉस बी का तो हमने कंपोजिशन निकाल लिया, आर यू विथ मी और नॉट? ए क्रॉस बी का तो हमने यहाँ पे कंपोजिशन निकाल दिया, सी. But if they will give you some another matrix, they not related with each other, then which composition you will apply? You will apply the mean max composition or max mean max. वो जो कंपोजिशन पढ़ाया वो कंपोजिशन यहाँ पे अप्लाई करना है, एंड वॉट एवर द आंसर यू विल गेट, दैट इज योर द फाइनल आंसर. ओके, ये मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल करवाया था. इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड. फाइन. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी सपोज टू लर्न टुडे, दैट इज सिमिलैरिटी मेथड. Okay, before going to the similarity method, we must know why we need a similarity method. Are you able to listen to me or not? लिखते जाना, नोट्स आज मिल जाएगी, but still लिखते जाना. Fine. Similarity method. There are two type of method in similarity. Mohit, Dipti, Jinendra, please respond. Tanish, Adit, Joy, समझ में आ रहा है? तन्मया, आशुतोष. Fine. So the first thing that we're going to learn today is similarity method. The similarity method is nothing, but there are two methods in similarity. First is cosine method and second is max mean method. Okay, why we need this method? Okay, let's understand by one example. The example is of earthquake. Okay, when earthquake happened to some place, suppose in Surat earthquake आया, ठीक है, तो earthquake का effect क्या होगा? ठीक है, from जो सेंटर है, जो सेंटर ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, उसके रेडियस के आजू नियर टू दैट रेडियस ऑफ ओरिजिन डैमेज ज्यादा होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग और नॉट? इफ अर्थक्वेक का ओरिजिन, सपोज अर्थक्वेक का ओरिजिन अगर अथवा गेट है, ठीक है, तो अथवा गेट एरिया में की रेडियस में जो भी प्लेसेस है, बिल्डिंग्स है, वहां पे क्या होगा उसका रेडियस, उसका डैमेज ज्यादा होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? A damage of building and property depends on the magnitude of earthquake, right? Okay, so suppose the insurance company is there, ठीक है, सबने इंश्योरेंस तो करवाया होगा. Are you getting my point? साई सिद्धार्थ, इंश्योरेंस करवाया होगा. If the insurance company wants to give money according to the damage, then how will we calculate? According to the area, near to the area, may or may not be possible. Fine. But if damage is more, ठीक है, ज्यादा डैमेज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी. अगर कम डैमेज है और फेक डैमेज किसी ने बता दिया, तो दैट्स व्हाई इंश्योरेंस कंपनी हैज टू चेक इफ इट इज नियर. कौन सी पॉसिबिलिटी काउंट करो? near to the center of earthquake, then the radius around the earthquake, वहां पे डैमेज ज्यादा होगा. उसके आगे की रेडियस, जैसे कि 1 किलोमीटर या 50 मीटर के अंदर में, 500 मीटर के अंदर में ज्यादा होगा. फिर 1 किलोमीटर चले जाओ, 1 किलोमीटर में क्या होगा? होगा डैमेज, बट इतना नहीं, ठीक है, मीडियम डैमेज. और उसके आगे क्या होगा? इट माइट बी पॉसिबल कि वहां पे अर्थक्वेक का कोई इफेक्ट ही ना हो. And agar those people who are far away from radius are claiming for the insurance company, so is it possible कि insurance company उसका पैसा दे?
समझ में आया है एग्जाम्पल? Are you getting this example? Okay, so example is saying that so there are three type of this: more, less, total damage. So insurance company will give money according to this. Fine. So what we will doing, we are, instead of checking the radius, we are divide the region. ठीक है, हमने x एक सेट बनाया, उसमें x1 x2 x3 x4 x5 रीजन बना लिया। जैसे कि अठवा गेट है तो उसमें अड़ाजन वगैरह सब रीजन बना लिया। ठीक है, तो वो रीजन में काम कैसे हो, रीजन में, so the region is nothing but it is called a data sample in the cosine amplitude. इसको क्या बोलते हैं? We will call the data sample in the cosine amplitude, and this radius x1 x2 xn, this is called a data sample. वो कुछ नहीं और कुछ नहीं है, that is area. area है, fine, that is area. What, and another thing that we required is, another three thing that we required is, that is मार्जिन, मेंबरशिप फंक्शन वैल्यू। ठीक है, मेंबरशिप फंक्शन वैल्यू पहली क्या है, एक्स आई वन इज इक्वल टू रेशियो विथ नो डैमेज, एक्स आई टू इज इक्वल टू रेशियो विथ मीडियम डैमेज, एंड एक्स आई थ्री इज ratio with serious damage. Fine. So what we can say right now, these are the three possibility where it might be possible the ratio with no damage property. It might be possible it comes under the originated area, earthquake का originated area है, उसके आजू बाजू होगी, पॉसिबिलिटी है। अगर कोई नई बिल्डिंग बनी है तो इट माइट बी पॉसिबल तो उसको डैमेज ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर अगर नो डैमेज है, राइट, तो कितनी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इट माइट बी पॉसिबल इट ओरिजिनेट के अंदर हो, उसके मीडियम में हो और यहाँ पे हो। फाइन। तो नो डैमेज मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि वो रेडियस के अंदर ही कोई बिल्डिंग है पर उसको डैमेज नहीं हुआ, स्टिल दैट बिल्डिंग ओनर इज क्लेम फॉर मनी। फाइन। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, दे विल सी द ओरिजिन के नियर है तो वो पैसा दे देगा। इज इट ट्रू? ऐसे होगा? Are you getting my point or not? कुणाल, आकाश, धैर्य, क्लेम अकॉर्डिंग टू डैमेज मिलेगा। फाइन, बट नो डैमेज नो क्लेम, राइट। बट द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, वो ऑनर ये दिखेगा भाई मेरा जो भी एरिया है दैट इज नियर टू दिस। सपोज किसी ने फेक क्लेम किया कि भाई ओरिजिन के नजदीक में है, ठीक है, बट उसका मतलब ये कि मुझे पैसे दो। इट इज नॉट ट्रू एट द टाइम। फाइन, दैट्स व्हाई वी नीड ईच एंड एवरी ओरिजिन। और नो डैमेज है तो इस एरिया में कितनी प्रॉपर्टी है जो नो डैमेज है? 0.3। इसमें x2 में कितनी प्रॉपर्टी है जो नो डैमेज है? 0.2। x3 एरिया में कितनी प्रॉपर्टी नो डैमेज है? 0.1। दिस हाउ वी दिस हाउ वी मेक एंटायर this how we function value is the damage according to it. But now the next thing that we need had to find a relation between this. Okay, so can you tell me how you find a relation? इसमें x x1 x2 x3 है, इसमें कितना मैट्रिक्स बनेगा? कैन यू टेल मी हाउ मेनी मैट्रिक्स वी कैन बिल्ड? इट विल गिव मोर मनी नियर टू अर्थक्वेक। जिनेंद्र, इट्स नॉट पॉसिबल। नियर टू अर्थक्वेक है, नई बिल्डिंग बनी है, उसका मतलब ये थोड़ी है नियर टू अर्थक्वेक है तो उसको पैसा दे दो। Are you getting my point? So we need, in similarity method, how many matrix can we build? Matrix कितना बनेगा? एक ही मैट्रिक्स होगा।
अदर पीपल गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नहीं समझ में आया बता दो. श्रव्या, अजीता, अपूर्व, प्रवीण, सुनील. सी वी आर सो, हम बहुत स्लो जा रहे हैं. वी हैव टू इंक्रीज अवर स्पीड, राइट? ठीक है, तो हमको एक ही मैट्रिक्स बनेगा और एक ही मैट्रिक्स में हम रिलेशन कैसे फाइंड करें? हाउ वी फाइंड अ रिलेशन इन द वन ओनली वन मैट्रिक्स? So that's why that is first method is cosine aptitude. Fine. Fine. तो cosine aptitude की method क्या है? That r of ij is equal to magnitude of sigma k is equal to 1 to m. M is nothing. M is what? The numbers of origin. Sorry, numbers of ratio. That is no ratio, medium ratio, serious ratio. All of you पहले ये देख लो. ठीक है, it is easy. मैं shortcut बता दूंगी कैसे करना है. Fine. ठीक है, तो एक वन से लेके एन तक पहला नो डैमेज, सेकेंड मीडियम डैमेज एंड थर्ड इज हाई डैमेज. फिर उसके बाद क्या करना है? एक्स ऑफ आई के. आई मतलब द नम वो 1 2 3 4 डेटा सैंपल होगा 1 to n. ठीक है, 1 to n डेटा सैंपल. देन जे इज इक्वल टू अगेन 1 to n डेटा सैंपल. ओके, एंड k इज इक्वल टू 1 to 3. दैट व्हाट वी आर डूइंग समेशन. देन सेकेंड थिंग डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 to m. दिस इज सेम, ये तो सेम रहेगा. ठीक है, फिर एक्स आई के स्क्वायर, एक्स आई रेस टू 2 k स्क्वायर. ठीक है, एक्स आई के स्क्वायर, आई इंटू के स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ के रेस के इज इक्वल टू 1 to m एक्स जे के स्क्वायर, इसका स्क्वायर. फाइन. और उसका अंडर रूट. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म. ठीक है, ये पूरा इक्वेशन है. This is the equation to find a cosine amplitude. Okay, amplitude, cosine amplitude. Now let's consider, let's understand by example. इतना समझ में आया डेटा सैंपल क्या है, डेटा सैंपल में x i to m क्या है. See, this equation is contain r of ij. ठीक है, r of ij is nothing but this matrix value. ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी किया है, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा. फाइन. r of ij is equal to summation of 1 to m. 1 to m क्या है? That is nothing but a one, that is nothing but a no damage, medium damage और serious damage. तीन होगा. m is equal to 3. Fine. m is equal to no damage, medium damage and high damage. Summation of k is equal to 1 to m into, sorry, that is summation of k is equal to 1 to m x I k. k is nothing but 1 to m, ये जो ऑलरेडी किया. अगर x इज इक्वल टू मैंने 1 to n लिया, n इज व्हाट? अ डेटा सैंपल. इतना समझा? k x इज x ऑफ x I इंटू k इंटू x j इंटू k. मॉड्यूलेशन डिवाइडेड बाय दैट सेम थिंग sigma of k is equal to 1 to m और x I square k then into sigma of k is equal to 1 to m x j square k अंडर रूट ऑफ ऑल. अभी समझा? डोंट वरी, ये लिख लो. देन लेट्स अंडरस्टैंड बाय वन एग्जांपल. ओके, अभी इसमें क्या होगा? द n क्रॉस n मैट्रिक्स यू गेट दैट टू अंडरस्टैंड यूजिंग एग्जांपल. ओके, डॉट प्रोडक्ट is dot product we supposed to apply. If the answer is near to 1, then we can say it is good relation, that I already told you. If answer is near to 1, then we can say good relation. If answer near to 0, that means no relation. Fine. ओनली एक ही मैट्रिक्स है. वो जो एग्जांपल था प्रीवियस का, वी ऑलरेडी गिवन 2 डेटा, राइट? तो उसमें कंपोजिट अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं. और यू गेटिंग माय पॉइंट? If two relation is given, then we apply a composite. Fine. If two relation are related with each other, we apply a mean composition. After applying mean composition, some other matrix is given to you and that is not at all related with each other, then you apply max mean composition. Here abhi isme kya hai? We have only one matrix. How to apply, how to find a relation? So first way to find a relation is cosine amplitude,
and this is the equation. Now let's understand using one example. Fine. Let's consider I is equal to 1 and j is equal to 2. Now put the value of ij in the equation. All of you put the value of ij in the equation. तो क्या होगा? R of I is equal to 1, j is equal to 2, R of 1 2 is equal to R of 1 2 is nothing. मैट्रिक्स बना लो. We already know कितने बाई कितने का मैट्रिक्स 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बनेगा. Right? 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बनेगा because we have a 5 region है 5 data sample. We have 5 data sample. 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है. Now take ये पहली वैल्यू I is equal to 1 and j is equal to 1 जाने देते हैं. Now take I is equal to I is equal to 1 and j is equal to 2. This is I and this is j. Fine. Now find the value of I is equal to 1 and j is equal to 2. If you put the value in the equation, are you able to see this? Now put the value of ij in equation. That is nothing but a summation of k is equal to 1 to 3, x of ik, x of jk. I is equal to 1 into k, x is equal to x into 1 into k, x of 2 into k. Now put k value 1, 2, 3 1 by 1. Okay. If you put k is equal to 1, so what you will get? 1 into 1, 1 into 1, x1. Are you getting my point? x1 मिला, x of 1 into 1, k is equal to मैंने 1 लिखा है. समझा? k is equal to 1 लिखा. ठीक है. I is equal to 1 into k, 1 into 1 1. Now put the value of x1. क्या है value x1 की? You get 0.3 over here. x1 0.3. Are you getting my point? Other people please reply. UICO 54 अभिषेक शर्मा. अभिषेक वो है या फिर क्लास में ऐसे ही रख के चला गया? Tell him to call me or contact me. Okay, fine. So x 1.3, right? So put the value 0.3 over here. 0.3 मिला. 0.3 into x of j2 into 1, 2 into 1 2. तो x2 की वैल्यू क्या मिली? 0.2 मिली. 0.3 into 0.2 plus. Then next thing, what we supposed to do? X is equal, now k is equal to what? Tell me what is the value of k right now? K is equal to. Now put the value of k is equal to. पहले तो हमने 1 लिखा. Now k is equal to. क्या है k is equal to? k की वैल्यू क्या होगी अभी? और रिप्लाई नहीं समझ में आया बताओ. अजीता 2. कैसे 1? कमलकांत 1 तो कैलकुलेट किया. नाउ पुट k is equal to 2 प्लस k is equal to 2. 1 into 2 कितना? 2. x2. ठीक है. ये दूसरी वैल्यू 0.6 एंड 0.4 एंड थर्ड 0.1 0.4. कुछ नहीं करना है. पहली दो वैल्यू x ये 0.3 इंटू 0.2 प्लस 0.6 इंटू 0.4 प्लस 0.1 इंटू 0.4. इतना समझ में आ गया? ठीक है. देन आफ्टर अप्लाइंग डू द समेशन. इतना समझ में आया ऑल ऑफ यू? समझा नहीं समझा? बाउंस गया बोलो फटाफट. Other people, Shravya, Ajita, Joy, Bhavesh, Sunil, Praveen, Apurva, आशीष, जीत, एकता, तुषार. ठीक है. Now then second thing what we supposed to do? This first value square, यहाँ आपकी first value का square और third first value का square. Fine. हाँ वो coordinate है.
ठीक है, पहले ये this two after that this two ऐसे करके पूरे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट इज सपोज टू डू, ये एक्स आई स्क्वायर एक्स जे स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स आई इंटू वन स्क्वायर, तो 0.3, 0.6 स्क्वायर, 0.3 square, 0.6 square, 0.1 square. Fine. Then what we supposed to do, j की value 0.2 square, 0.4 square, 0.4 square. Fine. स्क्वायर एडिशन, स्क्वायर प्लस एडिशन, और उसके बाद जो भी आंसर है उसका अंडर रूट, ठीक है। देन इफ यू सी देन यू विल फाइंड दिस वैल्यू 0.8.3.6. फाइन. So you will get xi1 xj2 is equal to 0.8.3.6, sorry 0.836. Fine. So if you calculate everything, ठीक है, अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, you just need to understand this equation and what this similarity matrix is doing, that you supposed to understand, right? Now if you calculate everything, what you will getting here, just tell me and just see and tell me what you getting here. We see the three properties of equivalence relation. Just see and tell me whether it is satisfied or not. Which property satisfies? देख के तो बता दो, इजी है। ध्रुव, श्रीनाथ, महादेव, विकास। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई हुआ, सिमेट्री सेटिस्फाई हुआ। इफ इट इज सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्री, then that relation is called what? If the matrix is satisfied symmetric and reflexive, then matrix is called tolerance. अभी क्या एक चीज चेक करना बाकी है, थर्ड थिंग बाकी चेक करना, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। अभी कौन सा थर्ड थिंग चेक करना है? ट्रांजिटिविटी। फाइन। तो एक एक वैल्यू चेक कर, x1 x2 x3 ऐसे पुट करके देख सकते हो। अगर ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमको क्या करना है? व्हाट इज द थियरम इफ मैट्रिक्स इज नॉट satisfy the transitivity theorem? If the matrix is not satisfy the transitivity, then which theorem is applied? Self composition, self max mean composition, right? At n minus 1 point it will satisfy the answer. Fine. So this is nothing but a first method. If there is no relation given between any of two relation, then first way to solve this is cosine amplitude. With cosine amplitude, okay. Then second method is second method to solve is max mean. This max is not similar to that previous max mean that we have seen. ये और ये max mean same नहीं है. Fine. उसके बाद अगर वो max mean पढ़ ले, उसके बाद हम बताएंगे what is the difference between max mean method and that cosine method. Fine. So to find the max mean method in similarity, okay, तो उसके लिए क्या करना है? All of you see this. First of all, summation of k is equal to 1 to m. ये you already know what is 1 to m, right? The numbers of possibility, no relation. अगर अगर किसी ने ये लिया, किसी ने ऐसा बता दिया very small damage, ठीक है? So there is also one part of fuzzy, right? Are you getting my point? No damage, medium damage, serious damage. किसी ने और एक ऐड कर दिया very small damage. Fine. ऐसे भी possibility है. Then what is the k? What is the value of m right now? If I add something else, if I add something into this my fuzziness, then what is the value of k is equal to m? That k is equal to 1 to m. Now what we supposed to do? The same thing. Minimum of sigma of xik comma xjk divided by same equation, but instead of minimum, what you supposed to write? Instead of minimum, what you supposed to write? Maximum. Are you getting my point? ठीक है. Now see cosine amplitude and max mean method. Which method you find easier? Which method you find easier?
मैक्स मीन इज इजी, बट कैलकुलेट द आंसर इन मैक्सिमम। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द आंसर। जैसे ही हमने x पॉइंट 3 पॉइंट 6 पॉइंट 1 सेम वैल्यू है, ठीक है, द प्रीवियस वन, इस एग्जांपल में भी ये सेम वैल्यू थी और इस एग्जांपल में भी ये सेम वैल्यू थी। नाउ कैलकुलेट इन एंड टेल मी द आंसर, कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर। पॉइंट यहाँ पे मिनिमम क्या होगा, 0.2, 0.2, 0.4, 0.1, right? Divided by maximum 0.3, 0.6 and 0.4. यहाँ पे 0.6 आएगा and 0.4. Then what answer you will get? You will get something 0.538. ठीक है? You will get 0.538. Okay, are you getting my point? समझ में आया? क्या डिफरेंस है? टेल मी. Same value, but what is the difference you will get? खुद देखो और बताओ डिफरेंस क्या है. राहुल, दीप्ति, तनिष, आदित्य, जॉय, तन्मया. The previous one more close to 1. Previous one is more close to 1. Yes, good. ठीक है, डायरेक्टली देख, सी द चेंजेस, सी द चेंज डायरेक्टली कितना 0.3 जितना तो फर्क आ गया. सो दिस मेथड इज, भले इट लुक्स easier, but it will not giving us a effective answer. That's why there is there is some difference. That is, we want a answer, we want optimal answer that is near to 1. If near to 1, that is good solution. Near to 0, that is, it might be no relation or not a good relation. So bhale ye method easy hai, but it's not giving us a good solution. That's why in real world, the similarity cosine amplitude is a method which is used in similarity method. Fine, this is highly used. Okay, अभी तुमको क्वेश्चन होगा कि मैडम ऑलरेडी वी हैव अ कोसाइन एम्पलीट्यूड मेथड, देन व्हाई वी नीड फॉर अ, फिर हमने मैक्स मीन क्यों फाइंड की. फाइन, किसी होगा कि हाँ ऑलरेडी कोसाइन एम्पलीट्यूड मेथड है तो मैक्स मीन पे जाने की क्या जरूरत थी. सी डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर गिव डिफरेंट डिफरेंट मेथड. किसी और रिसर्चर ने तो दूसरी भी मेथड दी है. किसी ने फिर सिमिलैरिटी मेथड के लिए मैक्स मीन भी दी है, अगेन मीन मेथड, मीन मैक्स, मैक्स मैक्स, मैक्स एवरेज. तो सिमिलैरिटी मेथड के लिए भी सबने ये अलग अलग मेथड दी है. ठीक है, मैक्स मीन यहाँ पे क्या मेथड है, मीन मैक्स. अगर मैक्स मीन होता तो क्या होता, ये क्या है, मैक्स मीन. फाइन, कुछ तो चेंजेस करके उन्होंने आंसर लाने की ट्राई की, बट ऑल or after comparison of every method, the cosine amplitude is the best method to find this relation. Fine, this is all the research work. रिसर्च करके, अगर तुम भी कुछ रिसर्च करके कुछ नया मेथड लेके आ गए और तुमने पब्लिश कर दिया और तुम्हारी मेथड अच्छी चल रही है कोसाइन एम्पलीट्यूड से, देन यू तुम्हारा मेथड इसमें आ जाएगा. फाइन, दिस इज द रिसर्च सब्जेक्ट. फाइन, किसी ने रिसर्च करके कुछ डाला, देन दैट बिकम अ स्टैंडर्ड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दर्शील, आशुतोष, लालचंदानी, सिद्धार्थ, समझा? सो अपना ये सिमिलैरिटी मेथड इज क्लियर. अदर किसी को प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन दिस सिमिलैरिटी मेथड, एनी प्रॉब्लम इन प्रीवियस एग्जांपल? ठीक है, फटाफट हमको ये सब कुछ खत्म करना है. आफ्टर दिस वी हैव टू स्टार्ट अ फल्सिफिकेशन एंड डीफल्सिफिकेशन. फाइन, शुड आई गो फॉरवर्ड? मैं आज सारी नोट्स अपलोड कर दूंगी. फाइन, जस्ट सैटरडे, कल सैटरडे है, ठीक है, मुझे सिर्फ एक काम करके देना, जो भी नोट्स मैं अपलोड कर रही हूँ वन बाय वन देखना. ठीक है, और तुम सिर्फ देखना, कंसेप्ट देखना, पढ़ना मत, देखना. और तुमको ऐसा लगे कि ये वाला कंसेप्ट मैं भूल गए है कि नहीं आ रहा है, तो जस्ट डिस्कस विथ ईच अदर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, ये हम भूल गए कैसे करना है.
Other people, Siddharth, Rajneesh, Himani, Satyam, Krunal, Akash, धैर्य. फाइन. जस्ट डू. मेरे लिए इतना करना कि नोट्स अपलोड कर दूंगी, वो पलट के देखना. फाइन. ठीक है. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन अल्फा कट. व्हाट इज अल्फा कट? टेल मी व्हाट इज अल्फा कट. अल्फा कट क्या है? व्हाट इज अल्फा कट? Membership function value is greater than or equal to alpha. Okay. Strong alpha. What is strong alpha cut? Membership function value greater than alpha. Okay. Fine. That's only greater than and greater than equal to. Fine. अभी हमने सिर्फ वो सेट में फाइंड किया था. अभी मैट्रिक्स में तुमको बोले कि अल्फा कट फाइंड करो तो कैसे करोगे? If someone tell you find the alpha cut in matrix, how will you do? Same thing. Alpha cut, normal alpha cut. Same thing करोगे. Suppose I will give you the alpha cut that is nothing but a 0.4. ठीक है. So what is the situation? The membership function value is greater than or equal to 0.4. Alpha की जगह का क्या लिखोगे? 0.4 लिखोगे. 0.4. Okay. Now see, 0.9. 0.9 is greater than 0.4. Greater than or equal to 0.4. Getting my point, tell me. 0.4 is greater than or equal to, sorry, 0.9 is greater than or equal to 0.4. Yes or no? Yes. बोलो ना. Fine. So if it is satisfied, तो उसमें क्या बनाते थे? फजी सेट में हम पूरा सेट बनाते थे ऐसे. इसमें पूरा सेट बना के एलिमेंट लिखते थे. यहाँ पे क्या करना है? If it is satisfied, then you supposed to write 1. If it is not satisfied, then you supposed to write 0. Fine. 0.9 greater than or equal to zero point 0.4 satisfy 1. 0.4 greater than or equal to zero point 0.4 satisfy 1. 0.0 it is not satisfied. Then what you supposed to do? A 0. Are you getting my point? समझा? Easy. क्या करना है? वहां पे पूरा सेट बनाते थे. ठीक है. यहाँ पे क्या करना है? सेटिस्फाइड तो 1, नॉट सेटिस्फाइड तो 0. फाइन. समझा? ओके. फाइन. ओके. अभी मेरी बात सुनो. ये सब मत देखो, मेरे यहाँ पे ध्यान दो. हम स्टॉप शेयरिंग. ओके. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. ठीक है. अभी ये सारा अल्फा कट, फॉल्सिफिकेशन, जो भी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी हमने पढ़ ली. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी सपोज टू डू, फॉल्सिफिकेशन एंड डीफॉल्सिफिकेशन. फाइन. नाउ व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, अल्टीमेटली हमने अभी तक क्या किया? व्हाट वी हैव डन अल्टीमेटली, हमने क्या किया? कोई भी वैल्यू मिली, हाई, लो, वेरी हाई, वेरी लो, अगर फजीनेस आता है तो हम क्या करते थे अभी तक? हमने क्या किया? सिर्फ उसको मेंबरशिप फंक्शन वैल्यू अप्लाई की और उसको फजी में ही आउटपुट दिया. फाइन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? फजी को फजी में ही आउटपुट दे रहे हैं. ठीक है. वाई फजी? फजी मीन्स वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट सिचुएशन. ठीक है. अगर तुम लोग कार चला रहे हो, आर यू ड्राइविंग अ कार? ठीक है. इफ समवन से टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, ओके, बट हाउ मच डिग्री टर्न लेफ्ट, हाउ मच डिग्री टर्न राइट? अब ये तो हम फिजिकल ह्यूमन है, हमको पता है. इफ यू आर ड्राइविंग, इफ यू आर मेकिंग दैट सेल्फ ऑटो ड्राइविंग कार, ठीक है, ड्राइवरलेस कार,
then that car must know if you want to turn left or right, any situation, if you want to turn left or right, then how much degree left, how much degree right. Fine. So what we are doing, we are making a फर्जी वैल्यू का ही हमने मेंबरशिप निकाल के फर्जी सेट ही बना रहे हैं. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा? दूसरा एग्जांपल समझाते हैं. फाइन. ठीक है, जैसे कि पाई की वैल्यू, पाई वैल्यू इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? पाई की वैल्यू 3.14. फाइन. इज इट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 3.14? एग्जैक्ट वैल्यू है? 3.14 is exact value? No, no. There is something 3.141595 something something something. ठीक है, तो that is nothing. 3.14 के बाद कितनी सारी वैल्यू है? अगर पॉसिबिलिटी देखे then we supposed to take all the value to calculate your answer. ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी है तो तुमको पूरा 3.14, डोंट यू थिंक इट्स अ फजी वैल्यू? ये कोई एब्सोल्यूट सोल्यूशन है? यस और नो का आंसर है. एग्जैक्ट वैल्यू है कि भाई थ्री इज द वैल्यू ऑफ पाई? नहीं. गॉटिंग? दैट इज 3.14 पॉइंट समथिंग 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 टिल इनफाइनाइट. फाइन. देन वी आर सपोज टू मेक अ डिसीजन. ठीक है, हमको डिसीजन लेना है कि 3.14 से कितनी वैल्यू हमको डालनी है. फाइन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना समझो. फाइन. 3.14 रेज टू इंफिनिटी, बट इंफिनिटी तो हम ऐड नहीं कर सकते ना इंफिनिटी वैल्यू. देन वी डिसाइड दैट इंस्टेड ऑफ गो इंफिनिटी वी विल पुट 3.14 ओनली. दिस इज अवर डिसीजन. ठीक है, हमारा डिसीजन आ गया भाई 3.14 लेके. डोंट यू थिंक इट्स अ क्रिस्प डिसीजन? समझ में आ रहा है? डोंट यू थिंक इट्स अ क्रिस्प डिसीजन? समझा नहीं समझा? बाउंस गया. बाउंस. Priyanshi, the thing is, the value of pi is 3.1415 supposed to infinity. 3.14 से लेके infinity है. Then we supposed to calculate the value of pi. We supposed to put in any equation. फाइन. हमको पाई की वैल्यू, सर्कल का इक्वेशन बनाना है, एरिया फाइंड करना है, उसमें सब चाहिए. ठीक है, तो इनफाइनाइट वैल्यू तो नहीं डाल सकती. देन द साइंटिस्ट कम अक्रॉस द डिसीजन दैट बाय 3.14 तक की वैल्यू ही हम लेते हैं. ठीक है, व्हाई वी आर नॉट पुटिंग 3.4.4, 3.141, 3.141, वो 141 क्यों नहीं लिया? 3.1415 क्यों नहीं लिया? अगर 15 ले रहे हैं तो 9 बोलेगा मैम मेरे को भी दो 3.1 पॉइंट 3.1.4.1.5. ठीक है, वैसे तो अलग अलग लोग अलग अलग बोलेंगे. फाइन. एंड दे आर करेक्ट. According to the value of pi, we supposed to put this. But finally, instead of putting this different value, they conclude that make pi value is 3.14 only. इतना value ही ले लो. Fine. That is nothing but some decision that is from fuzziness. We find one decision that is crisp decision. समझा? ये समझा? अभी समझा? सपोज सेल्फ ड्राइविंग कार. ठीक है, कार चला रहे हो, हमको हमारे बाजू में कोई बैठा है तो वो बोलेगा टर्न लेफ्ट टर्न राइट. इफ रोबोट इज सिटिंग इन दैट कार, that robot don't know how much turn left, how much turn right. If you say him to turn left right, तो वो तो क्या समझेगा भाई कौन सा लेफ्ट, कितना डिग्री लेफ्ट, कितना एंगल में राइट करना है. दिस इज फजीनेस फॉर दैट रोबोट. फाइन. So these are the system, artificial intelligence system, some numerical method, this all having the fuzziness. Okay, so we are dealing with fuzzy value. अभी तक हमने क्या किया, फर्जी वैल्यू को डील करके हम फर्जी में ही आंसर लाते. बट वी, इफ यू वांट टू लर्न अवर योर सिस्टम,
then your answer must be crisp. समझा? That entire process is called defuzzification. Fuzzification is fuzzy value को normalize करके fuzzy में ही output लाओ. Now the defuzzification process of converting the fuzzy value into the crisp, that is called a defuzzification. अभी समझा क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ यूज होता है, क्यों फजी? एवरी सिस्टम ऑन द अर्थ हैविंग फजीनेस. फाइन. एरोप्लेन कंट्रोल सिस्टम, कार ड्राइविंग सिस्टम, वी डोंट नो, एवरीथिंग इज फजी. बट मशीन अंडरस्टैंड ओनली आंसर. मशीन क्या समझता है भाई? आइदर जीरो और वन. इतना तो पता है ना, मशीन अंडरस्टैंड बाइनरी ओनली. जीरो मीन्स यस, जीरो मीन्स नो, वन मीन यस. समझा? That's why we need a defuzzification that we will start it from Monday. Okay? तब तक एक टास्क है, जितना भी चलाया तो अभी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी. जस्ट लर्न दैट एंड वी हैव टू गो फास्ट. बहुत स्लो जा रहे हैं हम. फाइन. अदर पीपल समझ में आया व्हाट इज डिफजिफिकेशन, क्या सिस्टम है? समझा? अभी तक तो हम क्या वही देख रहे थे, नॉर्मल थी, नॉर्मल कैलकुलेशन कैसे करते हैं फजी वैल्यू की, वो क्या होता है. ये जो भी आंसर हमने निकाला, मैट्रिक्स निकाला, भाई वो तो फजी ही है. ठीक है, हमको मशीन बनाना है तो हमको तो क्रिस्प वैल्यू चाहिए. ऐसे कैसे चलेगा मैडम? क्रिस्प वैल्यू तो चाहिए ना. दैट्स व्हाई द सिस्टम दैट वी नीड इज डिफजिफिकेशन, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम अपना लेक्चर कब है? अभी ट्यूसडे, राइट? ट्यूसडे को देखेंगे. फाइन.